Good morning, students. From today, we are going to start a course on basic mathematics. Basic mathematics. Students, this is the very introductory course in which we will deal with some topics which are relevantly used in advanced mathematics or in physics or in chemistry as well. First of all, students, I would like to tell you this course only deals with some basic chapters with the help of which you can build concepts to understand advanced mathematics and to understand the various concepts of physics. Okay, students, so let's start basic mathematics. In basic mathematics, first of all, we are going to start number system. Number system. Students, there are so many types of system of numbers. But here we will only learn those numbers which are relevantly used in mathematics. First, natural number. A number which are counted are called natural number. It is represented by n with a curly bracket and the number 1, 2, 3, 4 and so on is called natural number. Students, for example, हम लोग वैल्यू लेते हैं 1.5 which are not included in natural number. Only discrete values 1, 2, 3, 4 are called natural number. Only discrete values are included in natural number. सेकेंड स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स
whole number. Whole number. Natural number starts with 0 is called whole number, and it is represented by letter W with curly bracket. 0, 1, 2, 3 are called whole number. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि all natural numbers are found in the whole numbers, so we can say natural number is the subset of whole number, and it can be mathematically represented as natural number is a subset of whole number. Subset of whole number. Not. Okay, students. Second type of number, third types of the number is integers. Integers. Students, whole number या यू कह सकते हैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड द जीरो कंबाइंड रूप से इंटीजर्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आई और समटाइम्स इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जेड एज नथिंग बट माइनस ऑफ इन्फिनिटी डॉट 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 -2 -1 0 1 2 dot 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 plus infinity are called integers. Students, minus infinity to 1 is nothing but I minus means negative of integer, and 1 to plus infinite is nothing but positive integers. So students, it is represented by I plus. Students, जीरो यहाँ छूट चुका है. जीरो ना तो पॉजिटिव में आया और न ही नेगेटिव में आया, सो जीरो इज कॉल्ड नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स. तो जीरो इज कॉल्ड नाइदर पॉजिटिव इंटीजर्स nor negative integers. Okay students, so students, इंटीजर्स हमारे कितने तरह के हो गए? दो तरह के हुए, एक पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव इंटीजर्स. तो हमारा आता है टाइप्स ऑफ इंटीजर्स. टाइप्स ऑफ इंटीजर्स. टाइप्स ऑफ इंटीजर्स में स्टूडेंट्स सबसे पहला आता है पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स means all natural numbers are the positive integers, and it is represented by I plus, and which is equal to 1 2 3 4 dot 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 plus infinite is called positive integers. And positive integers is equal to natural number. Okay students, second type, negative integers. Natural numbers with negative sign is called negative integers, and it is represented by I minus, and which is equal to minus infinite
डॉट 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 -2 -1 I minus equal to negative of natural number. Okay students, if स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। स्टूडेंट्स अगर हमने जीरो को अगर इंक्लूड कर दिया पॉजिटिव इंटीजर्स में तो इस टाइप के जो इंटीजर बनेंगे दैट इंटीजर इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो थर्ड बनता है क्या स्टूडेंट्स, नॉन नेगेटिव integers. Non-negative integers means if 0 is included in positive integers 1 2 3 dot 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 plus infinite is nothing but non-negative integers। क्या हुआ स्टूडेंट्स, non-negative integers हुआ। फोर्थ नंबर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स स्टूडेंट्स अगर हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स में जीरो को ऐड कर देते हैं तो दैट इंटीजर इज कॉल्ड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इज नथिंग बट 0 -1 -2 -3 एंड डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट इज नथिंग बट नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स हमने क्या किया, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए इन नंबर्स के बेसिस पे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मीन्स हमने दो इंटीजर्स का हमने एडिशन किया, फिर हमने उसका सब्ट्रैक्शन किया, फिर हमने उसका मल्टीप्लिकेशंस किया। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल operations. Mathematical operations means addition, subtraction, multiplications, division, etc. These are called मैथमेटिकल ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स जब हमने नंबर्स का यानी नेचुरल नंबर्स या यूँ कह लें इंटीजर्स का जब हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस किया तो कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स सामने आए। सम रिजल्ट्स कम्स after mathematical operations of integers। स्टूडेंट्स जब हम लोग इंटीजर्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं तो कुछ रिजल्ट्स सामने आते हैं एंड दैट रिजल्ट आप इस एक एक करके आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग स्टूडेंट्स इंटीजर को ऐड करते हैं किसी इंटीजर्स के साथ तो हमें एक इंटीजर्स मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट्स, इंटीजर मिलता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग 2 को 3 के साथ अगर ऐड करते हैं तो हमें एक नंबर 5 मिलेगा एंड 5 इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। 2 इज इंटीजर्स, 3 इज इंटीजर्स। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो एक रिजल्ट मिला 5 एंड 5 इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। सो स्टूडेंट्स क्या हमने देखा कि इंटीजर्स को जब इंटीजर्स के साथ ऐड किया जाता है तो क्या मिलता है, इंटीजर्स मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जाम्पल जब हम लोग स्टूडेंट्स सेकेंड इंटीजर्स को इंटीजर्स के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक इंटीजर मिलता है। फॉर एग्जांपल जब हमने 2 को माइनस किया 3 के साथ तो हमें एक इंटीजर -1 मिला, इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, जब दो नेगेटिव
दो इंटीजर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें इंटीजर्स मिलता है। थर्ड, जब हमने इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया इंटीजर्स के साथ तो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? इंटीजर्स मिला। क्या मिला स्टूडेंट्स? इंटीजर्स मिला। फॉर एग्जांपल 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो हमें एक इंटीजर मिला 6 विच इज़ एन इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस आर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इन फर्स्ट हमने एडिशन किया, फिर हमने सब्ट्रैक्शन किया, फिर हमने मल्टीप्लिकेशंस किया। स्टूडेंट्स, जब हम लोग इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे इंटीजर से तो स्टूडेंट्स हमें दो रिजल्ट्स मिलते हैं। फर्स्ट इंटीजर्स मिलता है एंड द सेकेंड हमें रेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? रेशनल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स अगर हमने 2 को डिवाइड किया 2 के साथ तो हमें एक नंबर प्राप्त हुआ 1 विच इज़ एन इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, जब हमने 2 को डिवाइड किया 3 के साथ तो हमें स्टूडेंट्स जो नंबर मिला वो 2/3 जो कि एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, यानी 2/3 को हम लोग एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी ये जो नंबर हमें मिलेगा वो पॉइंट के फॉर्म में मिलेगा। ये जो नंबर हमें मिलेगा स्टूडेंट्स किस फॉर्म में मिलेगा? पॉइंट के फॉर्म में मिलेगा। तो ये जो नंबर हुए 2 नंबर्स, जब हमने सेम इंटीजर्स को डिवाइड किया तो हमें जो नंबर मिला वो इंटीजर्स मिला। और जब हमने सेम नंबर को 2 डिफरेंट इंटीजर्स को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो हमें नंबर मिलता है वो रेशनल नंबर हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट्स? रेशनल नंबर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें एक न्यू नंबर हमें मिला कि जब हम लोग 2 इंटीजर्स को यानी 2 डिफरेंट इंटीजर्स को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें एक जो नंबर मिलता है दैट नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर एंड दिस रेशनल नंबर आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. This rational number are written in the form of P/Q. Students, these are the mathematical operations and इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ही बेसिस पे हमने क्या देखा कि जब 2 इंटीजर्स को ऐड किया जाता है तो हमें इंटीजर्स मिलता है, 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हमें इंटीजर मिलता है, 2 इंटीजर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इंटीजर्स मिलता है। बट जब हम लोग 2 इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो 2 रिजल्ट सामने आते हैं। पहला कि जब हम लोग सेम नंबर से सेम इंटीजर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स? इंटीजर्स मिलता है। और जब हम लोग डिफरेंट इंटीजर्स से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है स्टूडेंट्स? हमें रेशनल नंबर्स मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट्स? रेशनल नंबर मिलता है। इस बात को हम लोग स्टूडेंट्स इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीजर्स को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इंटीजर्स के साथ तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? सपोज करिए दिस इज द इंटीजर 1 एंड दिस इज इंटीजर 2। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 चीज़ हमें मिल सकता है, एक हमें इंटीजर्स मिल सकता है एंड सेकेंड हमें रेशनल नंबर मिल सकता है, रेशनल नंबर मिल सकता है। फर्स्ट में हमें इंटीजर्स ही मिल सकता है। कब मिल सकता है? जब I1 इक्वल हो I2 के एंड जब I1 डज नॉट इक्वल हो I2 के तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? रेशनल नंबर मिलेगा। और जब I1 इक्वल होगा I2 के तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? इंटीजर्स मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। जब हम लोग 2 इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलता है स्टूडेंट्स? रेशनल नंबर मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट्स? रेशनल नंबर। रेशनल numbers. Rational number can be represented by letter Q and which is equal to a number which are in the form of P/Q such that P and Q belongs to integers and Q does not equal to 0, यानी Q की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमने रेशनल नंबर का डेफिनेशन तैयार किया कि नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो इस तरह से हो कि P एंड Q किसको बिलोंग्स करता हो? इंटीजर्स को बिलोंग्स करता हो एंड Q की वैल्यू 0 न हो, Q की वैल्यू कभी भी 0 न हो। ओके स्टूडेंट्स, तो वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो एंड P एंड Q बिलोंग्स करता हो इंटीजर्स को एंड Q की वैल्यू 0 न हो, दैट नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 2/3, 3/2, 5/6, 7/3. These all are the examples of rational numbers. These all are the example of rational numbers. Students, in a rational number, for example 2/3,
upper part is suppose कीजिए I1 and lower part is I2, and the upper part is called numerator and it is represented by NR, numerator, and the lower part is called denominator, it is represented by DR. For rational number, the denominator need not be 0. ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग रेशनल नंबर को अगर पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करें, फॉर एग्जांपल 2/3 को एंड 1/2 को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं पॉइंट फॉर्म में, तो 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5 एंड 2/3 विच इज़ इक्वल टू 0.666 ... स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोग दो डिफरेंट इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट फॉर्म में दो रिजल्ट सामने आया। एक रिजल्ट जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाता है एंड एक ऐसा रिजल्ट जो पॉइंट के बाद उसके डिजिट्स रिपीट करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? रिपीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में जो डिजिट्स में आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं स्टूडेंट्स? टर्मिनेट कर जाते हैं। डिजिट्स टर्मिनेटेड आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद स्टूडेंट्स रिजल्ट क्या हो जाता है? डिजिट्स क्या हो जाता है? टर्मिनेट कर जाते हैं। एंड फर्स्ट एग्जांपल, आफ्टर डेसिमल जो डिजिट्स क्या होते हैं? रिपीट करते हैं। डिजिट्स रिपीटेड आफ्टर डेसिमल। तो स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर दो तरह के हैं। एक ऐसा नंबर जिसमें डिजिट्स आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट कर जाते हो, एंड एक ऐसा नंबर जिसमें डिजिट्स आफ्टर डेसिमल क्या करते हो? रिपीट करते हो। तो ये दो तरह के होते हैं हमारे रेशनल नंबर। आफ्टर डेसिमल डिजिट्स टर्मिनेट कर जाते हो एंड सेकेंड आफ्टर डेसिमल डिजिट्स क्या होते हैं? रिपीट करते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल देख सकते हैं। 22/7 विच इज़ इक्वल टू 3.142857 and after that these whole digits are repeated. So students, पूरे के पूरे ये डिजिट क्या होगा? रिपीट करेगा। So students, this number are called rational number. 22/7 is a rational number. तो स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर क्या हुआ है? डिजिट्स जो होंगे या तो आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट करेंगे या तो क्या करेंगे? आफ्टर डेसिमल रिपीट्स करेंगे। तो रेशनल नंबर दो तरह के हो जाएंगे। एक वैसा नंबर जिसमें डिजिट्स क्या हो? आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट कर जाते हो। डिजिट्स terminated after decimal, and second one digits repeated after decimal. Digits repeated after decimal. Okay students, these are the two examples of rational numbers. Students, एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 5.0157 ...
यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर आफ्टर डेसिमल यानी 0.157, these digits does not repeat and does not terminate, यानी कि digits आफ्टर डेसिमल does not repeat and not terminated. इन शॉर्ट में इसे NRNT कहा जा सकता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो आफ्टर डेसिमल वो ना तो रिपीट होंगे और ना ही टर्मिनेट होंगे, एंड दैट नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इरेशनल नंबर कहा जाता है, इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो p/q के फॉर्म में ना हो, या यूँ कह लें कि जो p/q के फॉर्म में हो, बट उसे डिवाइड करने के बाद वो नंबर क्या आता है, पॉइंट फॉर्म में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वो नंबर ना तो रिपीट करेंगे ना ही टर्मिनेट करेंगे। ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, E and pi and all numbers which are written in a square bracket, for example in a square bracket, for example 2, for example 6, for example 3, and these all are the examples of irrational number, non repeating, नॉन टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल्स। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग √4 ले लें जिसकी वैल्यू आ गई 2, एंड द 2 इज़ द रेशनल नंबर, 2 इज़ रेशनल नंबर, बट √2 इज़ इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर q over prime. These are the example of irrational number, and the rational number are represented by the letter q, and the rational number are represented by the letter q. आप लोग देखें, rational number are represented by the letter q and irrational number are represented by the letter q prime. स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे दो सिंबल देखा, एक E एंड सेकेंड क्या देखा, पाई। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। एंड स्टूडेंट्स, जो वैल्यू E है इसे कहा जाता है नेपियर कांस्टेंट। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? नेपियर कांस्टेंट, नेपियर कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है नेपियर कांस्टेंट, एंड द नेपियर कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है E से। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देख सकते हैं, एक फंक्शन है e⁻x। क्या है स्टूडेंट्स? e⁻x। इसे एक्सपेंड किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 + x² डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ... इनफाइनाइट तक। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो आफ्टर कैलकुलेशन जो इसकी वैल्यू आती है, अगर हम लोग x की जगह पे पुट कर दे 1, तो 1 पुट करने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी e = 1, e⁻1 विच इज़ इक्वल टू e, इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली होगी 2.718। ये नंबर अप्रॉक्स है, ये ना तो रिपीट किया है और ना ही टर्मिनेट किया है, दैट्स वाई दिस नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स,
ये फैक्टोरियल क्या है, दिस आर फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टोरियल स्टूडेंट्स। इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि ई एंड पाई इज़ द इरेशनल नंबर, क्या स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर्स है, एंड हम लोग फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।